Hello everyone. Now this is one question I have taken, which is where we have to use Fourier series for the given function. The question is, obtain the Fourier series expansion of f of x raised to f of x is equal to x square in minus pi to pi. If you look at the range, आपको याद होगा फुल रेंज फंक्शन, फुल रेंज हाफ रेंज कैसे आइडेंटिफाई करना है. मैंने लास्ट टाइम मतलब लास्ट वीडियो मैंने देखा बोला भी था हाउ टू आइडेंटिफाई इट. इफ़ यू सी दिस लाइक इट्स हियर, वी आर स्टार्टिंग विथ 0. यहाँ पे पाई बाई 2 आ जाएगा, देन इट इज़ देन यहाँ पे पाई वैल्यू आ जाएगी, देन यहाँ पर 3 पाई बाई 2, 2 पाई, ऐसे full circle when we form it, it becomes like a 2 pi. So here if you see this minus from 2 pi, it is it's going, so it's a full range if you see it. Now so we can apply the Fourier series. Now the other thing is we have to check whether the given function is even function or odd function. तो यहाँ पे x की जगह मैं minus x value रख देती हूँ in the given function. When it was plus, I was getting x square. Now here instead of plus x I have kept minus x, but still I am getting the answer same, which is positive x square. So since both the time we are getting the same answer, that means f of x is equal to f of minus x. That's the reason I can say that it's a even function. So we can say that even the given function is even function. And जैसे ही अगर हम बोलते हैं कि कोई दिया हुआ फंक्शन इवन फंक्शन है, तो दैट यू शुड नो दैट बी एन इज़ इक्वल टू 0. मतलब हमें बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा काम वैसे एक कम हो चुका है. तो हमें सिर्फ जो पता करना है वो है a0 और an. सो लेट्स स्टार्ट विथ फाइंडिंग विथ यूलर्स फार्मूला. आपको याद होगा यूलर्स फार्मूला हमने एक बार पिछली बार भी इसको यूज़ किया हुआ है. यहाँ पे भी हम उसको जब भी हम फोरियर सीरीज़ के क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसको यूलर्स फार्मूला को ही यूज़ करने वाले हैं. तो आई हैव रिटन द फार्मूला ओवर हियर. f of x is equal to a0 by 2 summation of an cos 2n pi x upon b minus a, and this is bn's term is there, which is in terms of bn sin 2n pi x upon b minus a. Now we will start with here we have to find what is a and what is b. If you see here in the formula, a और b की value मतलब in terms of b and a it's given, and we don't know what is a and what is b. So let's first of all find out. तो हमें जो रेंज दी हुई है, इंटरवल जो दिया है माइनस पाई से पाई तक दिया हुआ है, तो इसमें से a की वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट माइनस पाई, b जो है पाई ले लेते हैं. हमें फाइंड आउट करना है b माइनस a, सो दैट्स हाउ वी गॉट द वैल्यू 2 पाई. So that we have to use it for the while calculating a0 and an. So now first of all यहाँ पे when if you keep this value b minus a is equal to 2 pi, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 pi अगर रख देती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 2 pi will get cancelled here. So what I will get is an cos nx, so जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. Similarly यहाँ पे भी अगर मैं b माइनस a की जगह अगर मैं 2 pi रख देती हूँ तो ये it will get cancelled and we will get bn sin nx. So that's substitution I have done it. Same formula जो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर मैंने b माइनस a की वैल्यू 2 pi रख दी है और उसको फॉर्मूला को सिंप्लीफाई किया हुआ है. एंड दैट विल बिकम माई इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज जब भी मैं a0 की हम वैल्यू निकालेंगे a0 और an की हम उसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. नाउ विल बी फाइंडिंग a0 का फार्मूला हमें पता है. जब हमने यूलर्स फार्मूला देखा था जस्ट स्टार्टिंग में, तो ये रहा इस इन टर्म्स ऑफ b माइनस a. सो 2 upon b minus a into we have to integrate f of x given function within the interval a to b. So now from the given equation we have written a's value minus pi and b's value pi. b माइनस की a की वैल्यू हमने निकाली थी 2 pi, जो यहाँ पर रख दी. ये 2 कैंसिल हो जाएगा, so we will get 1 by pi and the given function is x square. So this is now here one more important thing which you have to keep it in mind is minus here the interval of the limit is from minus pi to pi.
so which we can change it from double of 0 to pi. So that we can do it. Why? Because see, keeping this minus negative values in the integration, it becomes little difficult. So what we can do it, this interval we can change it. We have made half of this interval. Instead of taking minus pi to pi, I have just taken the positive value from 0 to pi and I have doubled it. So basically, since it's an even function, it's like a same value, symmetrical kind of. So from half range we have taken it and we will double it, so that it will cover the full range. It's an important thing to understand why we have done it. If you want to keep it as it is and integrate it, it's fine, we can do that. That is also, it will give the same answer, that is also equally correct. I have done it, I have converted into a half range and double it. So I am doing this way, which I have written in the next step. तो यहाँ पे मैंने लिया है लिमिट, इंस्टेड ऑफ, please note that instead of minus pi to pi, I have taken the limit from 0 to pi and I have doubled it. ये टू आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन मैंने लिखा है, बाकी सारी चीज़ें जैसे है वैसे ही है. नाउ लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 जो लिखा है. नाउ वी हैव टू कीप अपर लिमिट लोअर लिमिट, 3 कांस्टेंट है तो वो आई हैव केप्ट इट आउटसाइड. देन पाई क्यूब माइनस 0 क्यूब, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने के बाद ये आ जाएगी. सो a0 वी आर गेटिंग आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये पाई विल गेट कैंसल्ड. So 2 pi square by 3. So this is what our a0 value we got it. तो नेक्स्ट स्टेप होती है हमारा an फाइंड आउट करना है. an का फॉर्मूला सबसे पहले हमें लिखना होगा बाई यूलर्स फॉर्मूला. तो ये होता है 2 अपॉन b माइनस a इंटू इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू कॉस 2 पाई nx अपॉन b माइनस a. उसके साथ f ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे जैसे हमने बोला लास्ट टाइम ऑल्सो वी केप्ट इट, b माइनस a की वैल्यू हमारी 2 पाई है, रख दी यहाँ पे. नाउ 2 विल गेट कैंसल्ड. अपर लिमिट लोअर लिमिट a's b's वैल्यू वी हैव टू कीप इट, माइनस पाई एंड पाई आई हैव केप्ट इट. नाउ यहाँ पे भी मैंने b माइनस a की वैल्यू रख दी 2 पाई, तो ये 2 पाई विल गेट कैंसल. सो वी आर गेटिंग f ऑफ x इंटू कॉस nx dx. So let's start integrating this one by using यहाँ पे हमें f of x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सबसे पहले, जो कि x स्क्वायर है. So we will get x square into cos nx. So given function along with cos nx, दो टर्म्स का इंटीग्रेशन के अंदर जब भी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रहेगी तो हमें यूज़ करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ये हमने पहले भी किया था जब हम इंटीग्रेट फोरियर सीरीज़ हम निकाल रहे थे पीरियोडिक फंक्शन का, तो उस वक्त भी हमने इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को यूज़ किया था. सिमिलर वे वी विल यूज़ इट हियर एज वेल. तो 2 बाई पाई जो है कांस्टेंट नीचे आउटसाइड द इंटीग्रेशन इट विल बी एज इट इज़. और ये जो एक्स स्क्वायर है लास्ट टाइम भी मैंने इसको बोला था. नाउ आई एम रिवाइजिंग, ट्राइंग टू रिवाइज इट. वी आर यूजिंग एडवांस फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. फार्मूला का जो भी एक एडवांस स्टेज है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. जैसे कि हमने किया था कि फर्स्ट फंक्शन जो भी फर्स्ट टर्म है वो वैसे ही आ जाएगी जो यहाँ पे आ चुकी है. नाउ सेकेंड फंक्शन इज़ कॉस nx. कॉस nx का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे sin nx अपॉन n. उसके बाद हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म का जिसका है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते चले जाएंगे और ये जो सेकेंड टर्म है उसका इंटीग्रेशन हम करते चले जाएंगे. दैट्स हाउ वी हैव टू कीप, वी विल कीप गोइंग. एंड एक बार हम उसे प्लस रखेंगे, एक बार माइनस, प्लस माइनस अल्टरनेटली कीप चेंजिंग. सो यहाँ पे प्लस था तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस आ चुका है. नाउ एक्स स्क्वायर, इसका पहले का जो है पहली टर्म का उसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. साइन nx अपॉन n का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे तो वो साइन nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस nx अपॉन n. ये ऑलरेडी n वहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा n स्क्वायर. सो दिस इज़ व्हाट दिस टर्म वी विल गेट इट. अगेन सेम थिंग वी हैव टू डू इट. फर्स्ट टर्म जो भी है उसका डिफरेंशिएशन आपको करना है वो आ जाएगा यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाता है. नाउ दिस वन cos nx अपॉन n स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे यहाँ पे.
सो कॉस का माइनस हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एन क्यूब बिकॉज ऑफ दिस एन स्क्वायर विच इज़ ऑलरेडी देयर, एन स्क्वायर एंड एन क्यूब हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट वी विल गेट इट. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस आ चुकी है, यहाँ पे ये माइनस, और ये अगेन यहाँ पे ये प्लस. सो अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ इसी तरह हम चले जाएंगे. वी विल गो हेड विथ नेक्स्ट टर्म ऑल्सो, बट नाउ इफ़ यू सी हियर वी गॉट टू का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगी. सो फाइनली अल्टीमेटली वी विल गेट ज़ीरो. सो that's the reason I am stopping. I am not going ahead to find the further terms. So that's why I have written till this point. Now we will start simplifying this whatever we have received here. So simply what I have done it here, I have multiplied the thing, this minus 2x into minus cos nx. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस आ चुका है. एंड सिमिलरली यहाँ पे प्लस है और ये माइनस साइन एक्स है, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आई हैव केप्ट इट माइनस. अदर दैन दैट आई हैव केप्ट एवरीथिंग एज इट इज. जस्ट आई रोट द अबव इक्वेशन लिटिल बिट सिंप्लीफाइड फॉर्म सो दैट वी कैन प्लेस द वैल्यू. नाउ साइन एन एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. सो इफ़ यू सी हियर, if you keep upper limit and lower limit, limit we have taken it from 0 to pi. तो upper limit अगर रख देते हैं pi की वैल्यू, सॉरी n pi is nothing but the upper limit. So after keeping all this we will get here 2 pi minus, यहाँ पे सिर्फ ये पूरी टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि पाई की वैल्यू साइन पाई इफ़ यू विल कीप इट, इट विल बिकम ज़ीरो. यहाँ पे cos x की वैल्यू cos n x की वैल्यू जब अब निकालते हैं तो दैट विल बिकम माइनस 1 raised to n. सो दैट्स वाई वी हैव केप्ट इट हियर 2 पाई. यहाँ पे x की वैल्यू पाई रख दी है और माइनस 1 raised to n अपॉन n स्क्वायर. सिमिलरली ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि साइन पाई विल बिकम ज़ीरो. नाउ हियर आफ्टर कीपिंग वैल्यू x as a lower limit as a 0, I have received here sin 0 0 हो जाता है. So that's why I have received that. Now we just simplified this one. So now if you see here, this pi and pi will get cancelled here. So finally I will get a n this way 4 into minus 1 raised to n upon n square. और ये जैसे कि ये इवन फंक्शन है तो बी एन की टर्म यहाँ पे नहीं आएगी, बी एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो हमें सिर्फ ए ज़ीरो ए एन निकालना था जो कि हमने निकाला है. तो ये ए एन की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली और जो पहले ए ज़ीरो की वैल्यू निकाली थी, ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे जो कि सारे टर्म्स का एडिशन था. उसमें हमने देखने, दिस इज़ नथिंग बट आवर ए ज़ीरो वैल्यू विच वी फाउंड इन द प्रीवियस. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दैट यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट स्लाइड एंड चेक इट. एंड ये जो हमने अभी भी निकाली थी ए ज़ीरो ए1 की ए एन की वैल्यू यहाँ पे जो हमने निकाली थी, दैट्स आई हैव सब्स्टिट्यूटेड ओवर हियर. बी एन हमारा ज़ीरो रहेगा, सो वी डोंट हैव टू डू ओवर देयर एनीथिंग. आफ्टर दिस आई जस्ट हैव सिंप्लीफाइड इट दिस वन. So this one will get cancelled. So this is what I have received it here. 4 is constant, so I have kept it outside the summation sign. So only minus 1 raised to n cos n x upon n square. So this is what the final thing which I have received here. This is the final solution of Fourier series of the given function which was x square. तो सिंपल टर्म्स में आपको याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द गिवन फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है. एक बार आपको पता चल जाता है तो आपको समझ लेना है कि कौन सी टर्म आपको निकालनी है, मतलब ए ज़ीरो निकालना है, ए एन निकालना है, बी एन निकालना है. वंस यू नो दैट देन लुक एट द ए की बे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यूलर्स फार्मूला लगाना है, फाइंड आउट द एंड जस्ट कीप ऑल दिस वैल्यूज़ इन द यूलर्स फार्मूला. ओनली आपको याद रखना है, मतलब यहाँ पे याद जो रखना है वो इंटरवल का रखना है कि इंटरवल क्या दिया हुआ है, लिमिट्स कौन सी दी हुई है. एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द लिमिट्स लाइक इंस्टेड ऑफ नेगेटिव लिमिट्स, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव,
that is important thing. If you want to just go ahead with that one, that is also fine. Only while doing the substitution you have to be careful little bit. Other than that it's quite simple. So लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पीरियोडिक फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज़ कैसे अप्लाई करेंगे. यहाँ पे हमने देखा था इवन और ऑड फंक्शन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे. इसके बाद भी हम कुछ कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है उसमें हम कैसे फोरियर सीरीज़ कर सकते हैं, दैट वी आर गोना लुक इट. होपफुली यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.